Assalamu alaikum class. Today is our 11th lecture, which is about positive emotions in pursuit of happiness. I think we have discussed about positive emotions in all of our previous lectures. किसी न किसी फॉर्म में हर थेरी में पॉजिटिव इमोशंस की सिग्निफिकेंस जो है वो हमें देखने को मिलती है. इवेंचुअली उसका क्रक्स ये है कि दिस इज़ वन थिंग दैट लीड्स यू टुवर्ड्स हैप्पीनेस. If you want to pursue happiness, you need to inculcate positive emotions in yourself, and also in previous lectures as well, we have discussed that how positive emotions leave an impact on human beings, how positive emotions makes us prepare for do better things in life, so on and so forth. But now in today's lecture, we are going to discuss about positive emotions. We are going to read about positive emotions in terms of, scientifically, we are going to explore this phenomena through a theory which is considered as one of the most famous theory about positive emotions, right? So this lecture and the other lecture, both of these lectures are actually about positive emotions and theory about positive emotions. But of course, as a prelude, we first are going to explore what is positive emotions more in detail and how we can differentiate between positive emotions and other forms of emotions, so on and so forth, right? So let's move forward towards our first slide, which is going to be very new. And here you go. This is the first slide. These all are the positive emotions. You name it. You can, name many other positive emotions as well. But ये जो positive emotions जो लिखे हुए हैं इसके अंदर, जो आपको ये sticky notes नज़र आ रहे हैं, जिसमें joy है, love है, joy है, inspiration है, amusement है, pride है, hope है, interest है, serenity है, एंड ग्रैटिट्यूड है. ये वो पॉजिटिव इमोशंस हैं जो यूनिवर्सली हर कल्चर में लोग जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं इन देयर डेली डीलिंग्स, इन देयर डेली इंटरेक्शंस, अपनी अपब्रिंगिंग के अंदर, अपनी हाउ दे आर गोइंग टू लिव देयर लाइफ, उस सब में इन सारे ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो 10 इमोशंस हैं पॉजिटिव इमोशंस, ये यूनिवर्सली इम्प्लाई होते हैं. ये नहीं है, देयर आर सर्टन फॉर्म ऑफ इमोशंस जो बहुत स्ट्रांगली कुछ कल्चर्स में देखे जाते हैं, बट देन देयर आर सर्टन सॉर्ट ऑफ इमोशंस जो कुछ कल्चर्स में नहीं होते उस तरह से. बट इन 10 इमोशंस के बारे में जब रिसर्च की गई तो देखा गया कि ऑलमोस्ट हर मल्टीपल कल्चर्स के अंदर रिसर्च हुई थी और देखा गया था कि क्या कौन से ऐसे वो कॉमन इमोशंस हैं जो ऑलमोस्ट हर कल्चर, हर सोसाइटी, हर एरिया में जो है वो आप को नज़र आते हैं. उसमें आपको पता लगता है कि जी ये वाले जो 10 इमोशंस थे, दीज आर द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव इमोशंस जो वर्ल्ड वाइड जो हैं और कल्चरली जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं. ऑल राइट, फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ अबाउट अ कोट. ये कोट भी उनकी थ्योरी बेसिकली उन थेरिस्ट में से है जिनकी थ्योरी हमने अब आगे जाके जो है एक्सप्लोर करनी है, दैट इज़ अबाउट पॉजिटिव इमोशंस. इनका क्या कहना है? शी इज़ सेइंग दैट पॉजिटिविटी डजंट जस्ट चेंज द कंटेंट्स ऑफ योर माइंड, इट वाइडन्स द स्पैन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दैट यू सी. इसी पूरे के ऊपर इनकी पूरी थ्योरी जो है वो बेस करती है. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड in the same time very quite logical to believe in this aspect. वो कहती है सिर्फ पॉजिटिविटी का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने दिमाग के जो कंटेंट हैं उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं. नो, दिस इज़ नॉट इट. वो कहती है अलॉन्ग विद दैट, ये तो होता ही होता है दैट यू चेंज the contents of your mind, but along with that it also widens your horizon. It also widens your possibilities to explore many new areas of life, right? So this quote was actually, it summarizes the whole theory of Barbara Fredrickson. All right, पॉजिटिव इमोशंस. अब हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है पॉजिटिव इमोशंस की. पॉजिटिव इमोशंस को
हम डिफाइन करते हैं एज ह्यूमन इमोशंस that can be divided into two main categories. We can regard them as polarized, as opposite of each other, or we could just say that there is a dividing line between one type of emotion change into other type of emotions. ठीक है, ये पॉजिटिव इमोशन क्योंकि ये टॉपिक है, बट अभी हम सॉरी डेफिनेशन नहीं है ये, इट्स अबाउट द एक्सप्लेनेशन, इट्स अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ इमोशंस, बेसिकली ह्यूमन इमोशंस की जो एक्सप्लेनेशन है ये उसके बारे में है। वो कहते हैं ह्यूमन इमोशंस जो हैं उनको हम कैटेगोरिकली दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे से अपोजिट है, एंड एट टाइम्स हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जॉय का अपोजिट जो है वो सैडनेस है, या हैप्पी का अपोजिट जो है वो सैडनेस है। ठीक है, वो कहते हैं हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि देयर इज दिस डिवाइडिंग लाइन बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ इमोशंस। वन काइंड इज पॉजिटिव एंड द अदर काइंड इज नेगेटिव। जैसा एक चीज़ होती है उसकी दो डायमेंशंस होती हैं। फॉर इंस्टेंस आपके एटीट्यूड्स की जिस तरह दो डायमेंशंस हैं, आइदर यू हैव अ फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग और आइदर यू हैव एन अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग। एंड एट सर्टन टाइम्स आपका एटीट्यूड जो है, आप एक परप्लेक्स सिचुएशन में होते हैं, आप कंफ्यूज सिचुएशन में होते हैं, तो वो कहीं बीच में न्यूट्रल पोजीशन पे भी लाई कर रहा होता है। इसी तरह जो इमोशंस हैं वो कहते हैं उसकी दो पोलर्स के बीच में वो डिवाइडेड है। ठीक है, वो डिवाइडेड है थ्रू अ लाइन। ठीक है, वो डिवाइडेड है या वो अपोज करता है एक दूसरे के साथ। कहते हैं कुछ भी इसमें से आप एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज जस्टिफाइड फॉर एक्सप्लेनिंग पॉजिटिव इमोशंस, राइट? ऑलराइट, so we can call the two types of emotions as negative and positive. यूजुअली हम जब दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं या दो चीज़ों के बीच दो डायमेंशंस को हम कैटेगोरिकली डिफर करते हैं उनके साथ, तो हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में ही उसको डिवाइड कर लेते हैं। एटीट्यूड्स को भी हम कहते हैं कि जो उसका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था टुवर्ड्स समथिंग और एनीथिंग, ठीक है, या उसका बड़ा ही नेगेटिव एटीट्यूड था टुवर्ड्स दैट थिंग। इसी तरह इमोशंस की भी जब हम बात करते हैं तो इमोशंस भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप्स के होते हैं। That is not so much as value judgment as it is a description of the main action of each group. ठीक है, that it is not so much as value judgment, सब इस पे value judgment नहीं आप दे सकते इमोशन के ऊपर। इट्स जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन एक्शन। हम इंसान की किसी भी जो एक्शन के ऊपर वो किस तरह से उसने फील किया, उसने क्या इमोशन दिखाए, वो डिस्क्राइब करता है उस एक्शन के बारे में अबाउट दैट ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ पॉजिटिव इमोशंस से पहले नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस ये जो ऊपर आपका हेडिंग चल रही है इट्स अबाउट द टॉपिक। ठीक है, सो इसे कंफ्यूज ना करेगा। अभी हम नेक्स्ट ये पढ़ने लगे हैं डिवीजन जो हमने देखी है पॉजिटिव और नेगेटिव में। अभी हम नेगेटिव इमोशन को डिफाइन करना देखते हैं कि उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। हाउ पॉजिटिव इमोशन डिफर फ्रॉम नेगेटिव इमोशन, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस सच एज फियर, anger or disgust prepare us mentally and physically to take an immediate action against an object or situation that possesses a threat. वो कहते हैं नेगेटिव इमोशंस वो टाइप ऑफ इमोशंस हैं, वो फॉर्म ऑफ इमोशन है, जैसे फियर है, एंगर है, डिस्गस्ट है। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो इंसान को मेंटली और फिजिकली तौर पर प्रिपेयर करती हैं टू टेक अ सर्टन एक्शन, टू टेक एन इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट that situation, against that object, against any event जो उनके लिए फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग है, राइट? ये हम अभी जब स्ट्रेस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे उसमें भी क्लियर हो जाएगा, एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स वाली हेडिंग के अंदर भी आपको, कि किस तरह ये हमें प्रिपेयर करते हैं दीज इमोशंस। सो नेगेटिव इमोशंस हैज़ देयर ओन वैल्यू, दे हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते, पॉजिटिव इमोशंस तो हैं अपनी जगह सिग्निफिकेंट, वो होराइजन ब्रॉडन करते हैं, बट एट सर्टन टाइम, एट सर्टन सिचुएशंस, इन सर्टन इवेंट्स हमें एक और ख़ास तरह से बिहेव करना पड़ता है। ऐसी कुछ सिचुएशन विच इज़ अ फियरफुल सिचुएशन, जिसमें वाकई ही डरने की ज़रूरत है। आप किसी ऐसी चीज़ को इनकाउंटर करते हैं जो आपके लिए बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उस टाइम पर आप पॉजिटिवली होप का वो तो रख सकते हैं इमोशन, मगर उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट एक फियर भी तो है, क्योंकि वो फियर होगा तो आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं एक्शन लेने के लिए। अगर वो फियर नहीं होता, वो एंगर, वो गुस्सा, वो डिस्गस्ट, वो
डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती तो आप तैयार भी नहीं होते किसी एक्शन को इमिडिएटली लेने में, right? So negative emotions such as fear, anger or disgust, basically it prepares our body mentally and physically both to take a certain immediate action against that threatening or frightening stimuli. All right. अब इसके एग्जाम्पल हम ऐसे देखते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, fear prepares us to run away from a ferocious animal, anger to attack and subdue an enemy, and disgust to expel or avoid poisonous and noxious substances. Therefore, negative emotions protect us from life-threatening situations. But when we used excessively and inappropriately, these very life-saving emotions can be life-threatening as well. All right. उसने यहाँ पर बड़ा क्लियर एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस क्रिएट कर दिया. दे आर टेलिंग कि जी ठीक है, ये हमें हमारी बॉडी को प्रिपेयर ज़रूर करते हैं नेगेटिव इमोशंस, ताकि हम उस फ्राइटनिंग, उस थ्रेटनिंग सिचुएशन से फ्री अवे कर सकें, हम भाग सकें, हम रन अवे कर सकें, या हम उसको डील कर सकें. वो कहते हैं जब तक आपके अंदर वो फियर का इमोशन नहीं होगा, आप फ्रेशियस नहीं होंगे, और आप इनकाउंटर करते हैं किसी स्ट्रे एनिमल को, किसी डेंजरस एनिमल को, ठीक है, किसी डेंजरस इंसेक्ट को, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होगी उस एक्शन के लिए कि आपने यहाँ से भागना है इसको देखने के बाद. बिकॉज ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फाइट विद दैट स्ट्रे एनिमल. यू हैव टू, वो फियर असल में वो इमोशन है जो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा टू टेक अ रिलेवेंट एक्शन एज पर द सिचुएशन. ठीक, इसी तरह एंगर जो है, अगर आप जो है वो इनकाउंटर करते हैं किसी एनिमी के साथ, तो वहाँ पर आपको आपका कोई भी अपोजिंग कोई कैंडिडेट है, कोई खड़ा हुआ है, किसी ने आपके साथ बदतमीजी की है, वहाँ पर आपका जो गुस्सा है बेसिकली वही आपको प्रिपेयर करता है कि आपने अपने सामने वाले को किस तरह से सबड्यू करना है. अगर वो गुस्सा आपके अंदर नहीं आता, वो एंगर का इमोशन नहीं बिल्डअप होता, तो बहुत चांस है, मोस्ट लाइकली, कि आपको काफ़ी मार पड़ सकती है सामने वाले शख्स से, सामने वाली एनिमी से, ठीक है, जो भी है, जो आपके साथ हु इज़ नॉट दैट फेवरेबल फॉर यू, राइट. तो ये इस तरह से ये इमोशंस आपको, वो कहते हैं, किसी भी नॉक्शियस चीज़ों से, किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन से आपको सेव करते हैं. इसलिए नेगेटिव इमोशंस की इम्पॉर्टेंस है. बट ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि अगर ये लाइफ प्रोटेक्शन का काम करते हैं सर्टेन सिचुएशंस, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं. और वो कैसे होते हैं? जब हम इनका गलत इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जब हम इनका एक्सेसिव इस्तेमाल करना शुरू करते हैं. When we start displaying our negative emotions inappropriately at inappropriate places, when we start displaying our negative emotions more frequently and with more intensity, वहाँ पर नेगेटिव इमोशंस जो है वो नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करेगा. फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म में इम्पैक्ट करेगा आपको. कैसे? कि अच्छा, आपने किसी एनिमी से इनकाउंटर होता है, वहाँ पे गुस्सा दिखाना इज़ ओके, बट अगर आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ सिचुएशंस में भी हर छोटी और बड़ी बात में एंगर का इमोशन फील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको फिज़िकली आप बीमार हो सकते हैं, हाइपरटेंशन के आप पेशेंट बन सकते हैं. साइकोलॉजिकली आपका जो है वो ख़ास तरह से पर्सनालिटी के अंदर डिसऑर्डर्स, डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हैं वो रिजेनेट होना स्टार्ट हो सकते हैं. इसी तरह अगर आप फियर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में आप जो है वो डर जाते हैं, यू आर अनएबल टू टेक डिसीजंस, यू आर अनएबल टू टेक डील विद द सिचुएशंस, तो वहाँ पर जो है आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो लो हो जाएगा. इवेंचुअली वो लीड करेगा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जाके. ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव इमोशंस का इनएप्रोप्रिएट और एक्सेसिव जो यूजेज है, दैट कैन बिकम वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, दैट कैन बी वेरी, यू नो, दैट कैन बी वेरी negative and noxious for you as well. So to take just one example, they can mess up the function of internal organs including the immune function, which can have serious consequences for health. मैंने आपको ये अभी पिछली स्लाइड में क्लियर कर दिया कि किस तरह हर वक्त गुस्सा
की वजह से लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट बनते हैं। लोग हार्ट अटैक का जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादातर उन लोगों में आता है जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एंगर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो इस तरह की सिचुएशंस में या इस तरह के जो इमोशंस हैं वो सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करते, रादर दे ऑल्सो इम्पैक्ट योर फिजिकल हेल्थ, और फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं जितना ज़्यादा आप नेगेटिव इमोशंस दिखाते हैं। इस तरह नेगेटिव इमोशंस का एक्सेसिव डिस्प्ले जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का भी कॉज बनता है। यू रिमेन अनहैप्पी, आपको पॉजिटिव इमोशंस का यूजेज आपको नहीं आता, आप ऑटोमेटिकली आपका होराइजन ब्रॉडन नहीं होता, आपको नहीं पता होता कि हाउ टू डील विद सर्टन थिंग्स। आप इन सब चीज़ों, जब आपका लैक ऑफ कंट्रोल हो जाता है ओवर योर लाइफ इवेंट्स, देन ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऑलराइट, so what now? What are positive emotions? How can we define positive emotions? Positive emotions such as joy, hope, optimism, love, contentment and gratitude help us to grow as a person. It energizes us for positive action, solves our problems, improve the quality of our relationships and increase our sense of emotional well-being. When we engage in positive emotions habitually, over time they can become life enhancing, ठीक है। जहाँ पर हम नेगेटिव इमोशंस को हमने कहा कि उनका एक्सेसिव यूज़ लाइफ और एक्सेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट यूज़ अगर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, वहीं पर हम पॉजिटिव इमोशंस में कहते हैं कि इनका ओवर यूज़, इनका अच्छा इस्तेमाल, इनका फ्रीक्वेंट यूज़, पॉजिटिव इमोशंस के साथ इंगेज रहना जो है, दैट कैन इवेंचुअली बिकम लाइफ इन्हांसिंग फॉर यू। आपकी ज़िंदगी में जितनी पॉजिटिविटी, जितनी मुस्बत चीज़ें हैं वो सामने आने लगती हैं, वो आप उनको देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव इमोशंस जो ये सारे उन्होंने बताया उनका कि ये चीज़ें जो हैं ये इंसान को हेल्प करती हैं टू ग्रो एज अ पर्सन। जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं, जितना आप होपफुल होते हैं, जितना आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं टुवर्ड्स योर फ्यूचर, टुवर्ड्स योर प्रेजेंट, उतना ही ज़्यादा जितना आप कंटेंटेड होते हैं विद योर पास्ट, ये सब चीज़ें इवेंचुअली जो हैं वो आपको एज अ पर्सन ग्रो करने में हेल्प करती हैं, राइट। बिकॉज ये एनर्जाइज करते हैं हमारे पॉजिटिव एक्शंस को टू सॉल्व प्रॉब्लम। आप होपफुल होते हैं तो आप केपेबल होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो आपको लगता है कि आप डील कर जाएंगे इस सिचुएशन के साथ। आपके अंदर इफेक्शन होता है तो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। यू कैन गिव लव एंड वेल यू कैन टेक लव एज वेल। आप कंटेंटेड होते हैं अपने पास्ट से, अपने प्रेजेंट से, तो आप उतने ही लेस कंप्लेनिंग होते हैं। जितना लेस कंप्लेनिंग होते हैं उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होते हैं। जितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होंगे उतने ही रिड्यूस्ड चांसेस हैं आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाने के, ठीक। एंड इवेंचुअली ऑल दीज इमोशंस व्हेन इफ इनका जो हैबिचुअल होना, यूज़ करना, बार बार यूज़ करना, और आपको इस चीज़ की वो ना फ्रीक्वेंट इसका यूज़ करना जो है और हैबिचुअली इसको यूज़ करना जो है कैन बिकम वेरी लाइफ इन्हांसिंग। ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव इमोशंस, साइकोलॉजिस्ट बारबरा फ्रेडरिक्सन। अब जब हम इनकी थ्योरी पढ़ने लगे हैं उससे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन कुछ देख लें कि जो साइकोलॉजिस्ट बारबरा फ्रेडरिक्सन हैं, शी स्टडीज लव एंड वेराइटी ऑफ अदर पॉजिटिव इमोशंस लाइक जॉय, इंस्पिरेशन एंड प्राइड through the lens of social science, rooted in research studies, hypotheses, and data. Fredrickson is a leading scholar within social psychology, affective psychology, the study of emotion, and positive psychology. वो कहती हैं कि बारबरा फ्रेडरिक्सन ने पॉजिटिव इमोशन सच एज लव और इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया इन सोशल साइंसेस। उन्होंने इन चीज़ों को एज ए सोशल साइंटिस्ट जो है वो सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश की इन सारे इमोशंस को, जो प्रीवियसली भी कुछ रिसर्च स्टडीज़ में रूटेड थी, और उन्होंने आगे भी इन चीज़ों के ऊपर काम किया। शी वॉज अ लीडिंग स्कॉलर, बेसिकली वो सोशल साइकोलॉजिस्ट थी। शी वॉज नॉट अ पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट, मगर उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी और उनका जो काम था वो बहुत ज़्यादा इमोशंस के ऊपर था, इफेक्टिव साइंस के ऊपर था, ठीक है। इफेक्टिव इज़ समथिंग जो इमोशनल टर्म्स में, फीलिंग की टर्म्स में जिसको हम कहते हैं।
और फिर लेटर ऑन ऑफ कोर्स जब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया देन शी बिकम एसोसिएटेड विद पॉजिटिव साइकोलॉजी एज वेल. So Fredrickson work on the study of positive emotions like love began in 1998. आपने देखा हमने इनिशियली भी बताया था कि कुछ डेकेड्स पहले some like 1 or 2 decade बैक ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का सब्जेक्ट इमर्ज हुआ है. तो जितनी आपको सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रिसर्च की फॉर्म में नज़र आएंगी वो समवेयर इन 1998 की लेट 90s के ही टाइम पर है. Her foundational research led to her develop a theory of positive emotions called broaden and build theory. ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन ने जितना इन्होंने काम कर लिया था पॉजिटिव इमोशंस में, शी बिकेम एबल टू गिव अ थियरी ओवर पॉजिटिव इमोशंस और इस थियरी का नाम था broaden and build theory. The substance of this theory lies in the notion that positive emotions play an essential role in our survival. She believed कि ये जो theory है, the substance है इस theory का, वो सारा इस चीज़ के ऊपर बेस्ड करता है कि जो पॉजिटिव इमोशंस हैं बेसिकली ये इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं. इफ़ somebody wants to live, if somebody wants to survive, और उस सर्वाइव का मतलब ये नहीं होता कि सर्वाइवल फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, कि आप बस आपकी सांसें चल रही हैं एंड यू आर जस्ट लिविंग. नो, इट्स लाइक लिविंग अ गुड लाइफ, लिविंग अ प्रोडक्टिव लाइफ. उसके लिए एक प्रोडक्टिव सर्वाइवल के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव पॉजिटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव इमोशंस प्ले an essential role in the human survival. All right, the substance of this theory lies in the notion that positive emotions, acha we have already discussed this point, positive emotions like love, joy, gratitude promote new and creative actions, ideas and social bonds. जब उसने ये बात की कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वहीं पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस तरह के जो इमोशंस हैं बेसिकली जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव होते हैं उतना ही आपका माइंड जो है वो बेहतर चीज़ों को सोचता है, नई चीज़ों को सोचता है, क्रिएटिवली चीज़ों को डील कर लेता है. ये सारी चीज़ें जो है हम इसकी थ्योरी के अंदर बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे. ठीक है, ऑल राइट. पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव इमोशंस, ये एक डिफरेंस है. ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं और कौन से पॉजिटिव इमोशंस हैं. हमने इसको देख भी लिया है. एंगर, फियर, डिस्गस्ट, सैडनेस, जॉय, हैप्पीनेस, लव, होप, ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको ये नेगेटिव में हैं, कुछ पॉजिटिव इमोशंस हैं. नेगेटिव इमोशन एक बहुत मज़े का टेबल था. बेसिकली ये बताता है कि ये चीज़ें नेगेटिव इमोशन से आपकी कौन सी इम्पल्सेस, कौन सी ऑप्शंस, कौन से मैसेजेस जो हैं वो कन्वे होते हैं और पॉजिटिव इमोशन से कौन से होते हैं. सो अगर आप एंगर, फियर, डिस्गस्ट, सैडनेस जो है वो बेसिकली ये मैसेज देता है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद द पर्सन. इम्पल्स क्या होती है उस वक्त, एक्शन ओरिएंटेशन क्या होती है, यू वांटेड टू एस्केप, यू वांटेड टू हाइड और यू वांटेड टू टेक एन एक्शन और अटैक दैट पर्सन. जो हमने बात की कि एंगर और सैडनेस या फियर जो है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है बट उनका करेक्ट यूज़. ऑप्शंस क्या होती हैं, ऑब्वियसली जब आप नेगेटिव इमोशंस के अंदर होते हैं तो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ओपन नहीं होती. यू हैव फ्यू नैरो ऑप्शंस एम्ड एट कीपिंग अस सेफ. ऑप्शन सिर्फ एक होती है, यू जस्ट नीड टू सेव योर सेल्फ. आप किसी से लड़ाई भी कर रहे होते हैं उसमें भी आपका जो अल्टीमेट एम होता है यू वांट टू सेव योर सेल्फ. अगर फियर का इमोशन इमर्ज होता है किसी सिचुएशन में और आपको वहाँ से भागना पड़ता है तो उस भागने के पीछे की भी जो इंस्टिंक्ट और इम्पल्स होती है वो यही होती है दैट यू वांट टू सेव योर सेल्फ. ठीक है, सो एक ही वो कहते हैं बहुत नैरो ऑप्शन है, जस्ट वांट टू सेव योर सेल्फ. कॉन्सिक्वेंस क्या है, नैरोज अ पर्सनस ऑप्शन एंड एबिलिटीज ऑफ हाउ दे कैन डील विद द सिचुएशन. कहते हैं इतनी कोई आपके पास ब्रॉडन एबिलिटी नहीं होती. जो नेगेटिव इमोशंस हैं ओवरऑल भी वो आपको कुछ बहुत, आपने देखे व्हेन यू आर सैड तो आपको लग रहा होता है यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नैरो हो गई. ठीक है, कुछ नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते. नथिंग कंस्ट्रक्टिव यू कैन डू, नथिंग कंस्ट्रक्टिव यू कैन थिंक. ऑलराइट, उसके बाद पॉजिटिव इमोशंस में हम देखते हैं कि मैसेज कन्वे होता है दैट एवरीथिंग इज़ फाइन. इम्पल्स क्या होती है, टू प्ले, टू एक्सप्लोर, टू सोशलाइज. ऑप्शंस, लॉट ऑफ ऑप्शंस एम्ड एट लेटिंग अस ग्रो. बहुत सारी ऑप्शंस उससे सामने आती हैं जो हम इसको डिस्कस कर लेंगे अभी आगे जाके कि आप कैसे हाउ यू ग्रो. ठीक है, कॉन्सिक्वेंस होता है दैट इट ब्रॉडन्स पर्सन्स ऑप्शन एंड एबिलिटीज ऑफ हाउ दे कैन डील विद द सिचुएशन. आपके जो ऑप्शंस होते हैं, आपके जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये निकलता है कि इतने नैरो ऑप्शंस नहीं होते. यू हैव अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस जिसके साथ आपको पता होता है दैट यू हैव एन एबिलिटी टू डील विद सर्टन सिचुएशंस.